Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your mathematics class once again. I hope you all are good and safe at your home and you all are doing well. You are making your notes properly. So, today, very first, we will see the solution of previous homework. In previous class, I had given you to solve exercise 5th E. Remaining question. Okay, so let us see the solution. What we had studied in previous class. In previous class we had studied multiplying by 10, 100 and 1000. Okay, short trick. So let us see. In question number first we had solved, and now we have to solve 2. 68 multiplied by 2. So in this, simply we have to multiply 68 with 1. 68 multiplied by 1 is equal to 68. Here is 1 0, so we will put 1 0 right side of 68. Okay. And 89 multiplied by 100. So in this, again we will multiply 89 with 1. So we get 89, and here is 2 0. So we will put 2 0 right side of 89. And 4 multiplied by 100. So we will multiply 4 with 1. So 4 ones are 4, and we will put 2 0 right side of 4. मीन्स कि हम इस ज़ीरो से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिंपल सा ये जो नंबर दिया हुआ है 1, सो हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स कि 4 1 जा 4, या हमें पता है कि हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में वो नंबर ही मिलता है. सो 4 1 जा 4, और यहाँ पे 1 to 2 0 है, तो हम 4 के राइट साइड में 2 0 को पुट कर देंगे. ओके, सो लाइक दिस यू had to solve all questions. So I hope you all have done your homework. Now I have written the solution of all questions. Okay, so now you can match it with your answer. And now I am going to start our today's class. So let us see. Our today's topic is multiplying by multiples of 10 and 100. So in this section we will learn, or we will understand the short trick of multiplication. Multiplying by multiples of 10 and 100. Okay, so firstly we will see multiplying by multiples of 10, that is 20, 30, 40, 50, 60, on so on 90. Okay, so let us understand it by example first. Example number first is 7 multiplied by 30. 7 multiplied by 30. So you can see here I have written 7 multiplied by 13. So my dear students, we can write 30 like this. 3 tens. 30 means 3 tens. हम 30 को 3 tens भी write कर सकते हैं. So I have written here 7 multiplied by 3 tens. 3 tens means 30. And now we will multiply 7 with 3. So 7 3s are 21, and tens same as, and 21 tens means 210. 21 tens means 210. जैसे कि अगर 30 मीन्स 3 टेंस होता है तो 21 टेंस मीन्स 210. ओके, let us look another example. Example number 2, 15 multiplied by 15 multiplied by 15. 15 multiplied by 15. So we can write 50 as
5 टेंस। 50 को हम 5 टेंस भी राइट कर सकते हैं। सो आई हैव रिटन हियर 50 as 5 tens, and now we will multiply 50 with 5. So read the table of 55 times. So 55s are 75 and tens same as. So 75 tens means 750. 75 tens means 750. So from the above examples we conclude that to multiply a given number by 20, 30, 40, 50 and so on 90, we multiply the given number by 2, 3 and so on respectively and put a 0 to the right of the product. Means कि अगर हमें दिए हुए नंबर के साथ 10 के मल्टीपल्स, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ओके, उनसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम दिए हुए नंबर के साथ 2, 3, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर्स के, जैसे कि यहाँ पे 75 है तो उसके राइट साइड में अगर 10 का मल्टीपल्स है तो हम राइट साइड में सिर्फ सिंगल ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो इससे हम इस बड़े से मल्टीप्लाई को एक छोटे से फॉर्म में और बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज multiplying by multiple of 100, that is 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 900. Okay, so look at the example number first. Here first is 11 multiplied by 200, means we have to multiply 11 with 200. So what is this? This is 200. So we can write 200 in words like this, 2 hundreds. Okay, and now we will multiply 11 with 2. So read the table of 11 two times. 11 2 ja 22. So I have written here 22 and 100 same as 22 hundreds. And now we can write 2200 like this in numeral 2200. ओके, इससे आपने क्या देखा कि हम इससे बहुत ही शॉर्ट टाइम में आंसर मिल सकता है। अगर हमको इस मल्टीप्लिकेशन को करना होता इस फॉर्म में लाइक दिस 200 मल्टीप्लाई बाय 11, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। 11 zeros are 0, 11 zeros are 0, 11 twos are 2, and in next step 1 zeros are 0, 1 zeros are 0 and 1 twos are 2. Then we will add 0, 0 to 2. Okay, but we do not need to do this. We can get answer very easily and very quickly by this method. Okay, look at example number 2. Example number 2, 18 multiplied by 400. We have to multiply 18 with 400. 400 is multiple of 100. So what we have to do? Firstly, we have to write 400 in words. So I have written here, and now we will multiply 18 with 4. Means we have to read the table of 18 4 times. So 18 4s are 72, and we will write 100 same as, so 72 hundreds. And now we can write 72 hundreds in numeral like this, 7200. ओके, मीन्स कि इसमें आपको क्या करना है, फर्स्टली ये जो 400 दिया है ये न्यूमरल में मतलब अंकों में दिया है, हम इसको वर्ड में राइट करेंगे 400 शब्दों में।
ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर बचते हैं 18 और 4, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 18 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना होगा। ओके, सो वी नो 18 4 जा 72। अब हमने यहाँ पे 72 लिखा। 100 है, 100 को हम सेम एज राइट कर देंगे। उसके बाद हम 7200 जो कि वर्ड्स में शब्दों में लिखा है उसको न्यूमरल में राइट कर सकते हैं। सो 7200 इन न्यूमरल, सो वी कैन read it like as 7200 or 7200. So from the above example we conclude that to multiply a given number by 200, 300 and so on means multiple of 100. We multiply the given number by 2, 3, 4, 5 and so on 9 respectively and put 20 to the right side of the product. कहने का मतलब है एकदम सिंपल सा कि अगर हम 100 के मल्टीपल से किसी भी नंबर को, दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी नंबर दिया हुआ हम, जैसे कि यहाँ पे 18 है और 18 को हमें 400 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 18 को, अगर यहाँ पे 400 है तो 4 से, अगर 200 होता तो 2 से, 300 होता तो 3 से और 500 होता तो 5 से, इसी तरह 900 तक। उसमें से दिए हुए केवल 2, 3, 4, 5 और सो ऑन 9 तक के नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसके फिर जो भी आंसर मीन्स प्रोडक्ट जो भी आएगा उसके राइट साइड में हमें 20 पुट कर देना है। सो बाय दिस वी कैन गेट आवर। So I hope you all have understood it what we have to do. मीन्स कि अगर 10 के मल्टीपल्स हों, 10 के मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं? 10 के मल्टीपल्स 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या उसके आगे भी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम मल्टीपल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए उसमें 1 से स्टार्ट करके जहाँ तक हमारा मन चाहे वहाँ तक मल्टीप्लाई करके, है ना। तो उसी तरह अगर 10 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 20, 30 लाइक दिस, इसी तरह होंगे। तो अगर हम 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर दिए हैं उनसे हम दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा उसके राइट साइड में 10 को पुट कर देंगे, तो वो हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। और अगर हम 100 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दिए हुए नंबर को तो 100 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 200, 300, 400, 500 इसी तरह। ओके, तो इसमें भी हम केवल जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स हैं उनसे हम गिवन नंबर, दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके हम राइट साइड में 20 को पुट कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 5F. सो क्वेश्चन नंबर 5, first of exercise 5F is write the product in the box. Product means मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है। ओके, सो फर्स्ट इज 7 multiply by 20. So we can see 20 is the multiple of 10. 20 जो है वो 10 का मल्टीपल है। So what we had studied in rule of multiples, multiplying by multiples of 10. So we had taught that we will multiply given number with 2, 3 and so on and put 10 right side of the product. So same as we will do here. It means we have to multiply 7 with 2. 7 with 2. So 7 2 ja 14. 7 2 ja 14. Okay, and here we can see 10. So we will put 10. मीन्स 14 के राइट साइड में हमने 10 पुट किया, सो वी गेट 140 एज अ प्रोडक्ट.
B is 6 multiply by 13. 6 multiply by 13. तो हमें क्या करना है, सिंपली 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो 6 3 ज़ा 18. 6 3 ज़ा 18. So I have written here 18 and we will put single zero. We will put single zero to the right side of 18. मीन्स कि हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर में क्या मिला 18. अब हम 18 के राइट साइड में यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है तो सिंगल ज़ीरो को पुट कर देंगे. तो इस तरह हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि 180 है. ओके, लुक हियर के 13 मल्टीप्लाई बाय 400. 13 multiply by 400. So in this we will multiply 30 with 4. 30 with 4. So 13 4 जा 52. 13 4 जा 52 and 400 100 का मल्टीपल है या तो यहाँ पे डबल ज़ीरो है ना, तो हम 52 के राइट साइड में डबल ज़ीरो को पुट कर देंगे. ओके, सो वी गेट 5200 एज अ प्रोडक्ट. ओके, लुक हियर L. हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 20 विथ 300. 20 मल्टीप्लाई बाय 300. सो वी विल मल्टीप्लाई 20 विथ 3. सो 23 ज़ा 60. 23 ज़ा 60 and here 20. So we will put right side of 60 20. So we get 6000. Okay, so I hope you all have understood it. So now remaining question you have to solve. Okay, let us look question number 2. Question number 2, solve the following. A spool has 36 meters of ribbon on it. What is the length of the ribbon in centimeters? मीन्स कि एक स्पूल में 36 मीटर लंबी रिबन है. तो इस रिबन की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मीन्स कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ओके, क्योंकि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो इन 36 मीटर हाउ मैनी सेंटीमीटर विल बी? मीन्स कि 36 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड मल्टीप्लाई 36 विथ 100. So now we will multiply it with, so we will multiply here 36 with 1. So 36 multiplied by 1 is equal to 36 and here is 20. So we will put 20 of the to the right side of 36. मीन्स कि हम यहाँ 20 को राइट करेंगे 36 के राइट साइड में. ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 36 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें 36 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. और हम जब 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह करेंगे? 36 यहाँ पे 1 है, 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. तो एज वी नो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1 सो वी गेट नंबर इटसेल्फ. हम किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमेशा वो नंबर ही मिलता है. सो 36 को भी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 36. और यहाँ पे 20 है या तो 100 है, तो हम जानते हैं कि 100 के मल्टीप्लाई का रूल है कि हम जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसके राइट साइड में, उसके दाहिने साइड में 2 ज़ीरो को पुट कर देंगे. तो हमने पुट कर दिया. सो this is our answer, 3600 centimeter. It means the length of the ribbon in centimeter is 3600 centimeters. Okay, B is Vivek has 56 10 rupee notes. How much money does he have? मीन्स कि विवेक के पास
56 10 रुपी नोट्स है। 10 रुपये की जो नोट्स होती है वो 56 है, तो उसके पास टोटल मनी कितनी हुई। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई 56 with 10. So here 56 multiply by 10. In this question again we will multiply 56 with 1. So we get in answer 56. Okay, and here is 10, so we will put here 10. मीन्स कि यहाँ पे 56 है, तो 56 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 56, और यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है तो हम 56 के राइट साइड में दाहिने साइड में 10 को पुट कर देंगे, तो हमें आंसर में क्या मिला 560. सो द मनी दैट ही हैज़ 56 रुपी. इट मीन्स कि विवेक के पास 560 टोटल रुपीज़ हैं. अगर विवेक के पास 56 रुपी के 10 नोट्स हैं तो उसके पास टोटल 560 रुपी हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे योर होमवर्क इज you have to solve these remaining questions C and D along with remaining question of question number 1. This also okay, मीन्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स.